Hello students, welcome to Aculen Science classes. I am Akanksha Ehlawat and today we will continue with second part of acids, bases and salts. In this video we will discuss about universal indicator, pH scale, importance of pH in everyday life, and then we will discuss about several salts that can be formed from common salt. But before starting with it, I would like to request you all to please watch part 1 video of this chapter. Link is given in the description. In that video, I have discussed about some important concepts of acids and bases and the physical and chemical properties. So now let's start with this video. How strong are acids or base solutions? We have already learned in the previous video that acid-base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. हमने कई सारे indicators देखे थे अपनी previous video में. We have already learned in that video about dilution and decrease in the concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in the solution. जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज हो जाते हैं एसिड्स के. सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयंस भी डिक्रीज हो जाते हैं बेसिस के. नाउ द क्वेश्चन इज, अब एक सवाल उठता है कि क्या हम क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं ये आयंस को? कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेस इज, कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? Yes, we can do that by making use of universal indicator, which is a mixture of several indicators. So strength of an acid or a base can be estimated using a universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator show different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. Hydrogen ions की concentration पे depend करेगा color. Like you can see here, this is the pH scale and this is the universal indicator. If it is showing like very red in color, then it's very acidic, having very high hydrogen ions. And if it is showing dark blue color, then it has very high OH ions, hydroxide ions. Similarly, based on the color, we can find out the pH value of that particular thing. And some कुछ चीज़ों का यहाँ पे दे रखा है, like water which is around neutral 7 pH and black coffee which is quite like acidic in nature. Here soapy water, it is basic in nature. So now let's learn something more about pH scale. A pH scale is used for measuring hydrogen ion concentration in a solution, where P stands for potence. Potence का मतलब है ये एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स पावर. मतलब ये क्या दिखा रहा है? हाइड्रोजन आयंस की पावर. तो अगर pH 7 है तो इट शोज न्यूट्रल सॉल्यूशन. व्हेन pH इज लेस देन 7, एसिडिक सॉल्यूशन. इफ इट इज मोर देन 7, इट शोज बेसिक सॉल्यूशन. बट इसमें भी हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होगा, एंड हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होगा तो पीएच बहुत ही कम होगा. वेयर एज वीक एसिड्स जो होंगे उनमें हाइड्रोजन आयंस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम होगा, तो उनका पीएच थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स. You can see here they have very high hydrogen ions, and when it keeps on decreasing तो weak acids आ जाएंगे. Whereas in weak base हम देख सकते हैं कि इनके पास OH ions बहुत कम हैं, whereas strong bases के पास OH ions बहुत ज़्यादा हैं. तो strong base के पास OH ions बहुत ज़्यादा हैं but H ions बहुत कम हैं, तो इनका pH कितना हुआ? मैक्सिमम होगा. They have maximum pH. But OH आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, एंड इनका pH एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स कम होगा. स्ट्रॉन्ग बेसिस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेसिस का pH कम होगा. अगर हम एसिड्स को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मान लो डाइल्यूट कर रहे हैं, इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया है तो इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा. और अगर हम बेसिस को डाइल्यूट करेंगे
बेसिस को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए कि एसिड्स के डाइल्यूशन से पीएच इंक्रीज होगा और बेसिस के डाइल्यूशन से पीएच डिक्रीज होगा। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं 7 इज द न्यूट्रल पीएच एंड इसके राइट साइड में बेसिक नेचर इंक्रीजेस। 7 से हम 14 तक जाएंगे तो बेसिक नेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम 7 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। लाइक यहाँ पे 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, है ना। तो 6 का एसिडिक नेचर 5 वाले से कम होगा, बट 5 वाले का 6 से एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 विल बी द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ओके। एंड इनके पास जिसका एसिडिक नेचर मैक्सिमम होगा उसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस होंगे, जिनका बेसिक नेचर मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, 14 वैल्यू होगी, तो उनके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस बहुत ही कम होंगे बट हाइड्रोक्साइड आयंस मैक्सिमम होंगे। Now let's learn about importance of pH in everyday life. First is plants and animals are pH sensitive. Our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only in a narrow range of pH change. If the pH change is more than this range, then the body fails to function. अगर pH इससे थोड़ा भी change होता है तो body ढंग से काम नहीं करती. And when the pH of rainwater is less than 5.6, उसको acid rain बोलते हैं. When acid rains flow into the river, it lowers the pH of the river water. रिवर वाटर का भी pH लो हो जाता है, जिसकी वजह से उस वाटर में जितने भी एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना हैं उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है. फ्लोरा एंड फौना मतलब उसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं या एक्वेटिक जितनी भी लाइफ है उनका वहाँ पे जीना मुश्किल हो जाता है. देयर लाइफ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड दे डाई. Next is pH of the soil. Plant require a specific pH range for their healthy growth. Plants को एक specific pH range ही चाहिए, उसके इधर उधर pH range होते ही plant dies. Now next importance is pH in our digestive system. Our stomach produces hydrochloric acid and it helps in the digestion of food without harming the stomach. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है बट स्टमक को कोई हार्म नहीं होता, बिकॉज हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड विच प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक. बट ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, और वो म्यूकस भी बचा नहीं पाता स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम दैट एसिड के बर्न से बचा नहीं पाता, इसीलिए बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है. To get rid of that pain, people use antacids. Antacids क्या होते हैं, are basic in nature. Like magnesium hydroxide, इसको milk of magnesia भी बोलते हैं, और इसका क्या काम है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है excess salt, excess acid को. तो it neutralizes excess acid and gives instant relief. Next importance is pH change as a cause of tooth decay. टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, और जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ इनेमल स्टार्ट्स कोरोडिंग. टूथ इनेमल क्या है, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, एंड ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है जब माउथ का pH 5.5 से कम होता है. 5.5 से pH कम कैसे होता है, because bacteria present in the mouth produce acids by the degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद माउथ वॉश नहीं करते तो बैक्टीरिया जो होते हैं it starts working on the it start degrading sugar and food particles जो माउथ में रह जाते हैं, और फिर उसकी एक्टिविटी की वजह से pH 5.5 से कम हो जाता है. तो the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food and by using toothpaste. Toothpaste का कैसा नेचर है, basic in nature, so that's why they can prevent tooth decay. Now last importance we are going to study here is self defense by animals and plants through chemical warfare. आपने देखा होगा जो bee sting है
वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है। अगर कोई बी काट लेती है तो उससे बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है। अगर बट उसी जगह पे बेकिंग सोडा लगाया जाए तो इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है जहाँ पे भी बी ने काटा होगा। तो यूज़ ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। एंड स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स होती हैं, एक प्लांट है। इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, इसकी वजह से मिथेनोइक एसिड आ जाता है एंड विच कॉजेज बर्निंग पेन। तो रबिंग द लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव्स रिलीफ। तो डॉग प्लांट का कैसा नेचर हुआ? बेसिक नेचर, इसकी वजह से रिलीफ मिल गया बिकॉज नीटल लीव्स के स्टिंग से मिथेनोइक एसिड आ गया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्निंग पेन हुआ था। तो रबिंग विद लीफ ऑफ डॉग प्लांट से काफ़ी रिलीफ मिलता है। सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी चाहिए। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में, लेमन में कैसा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ये सारी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें मिलता है, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। सोर मिल्क कर्ड में क्या होगा? लैक्टिक एसिड। टेमेरिन में कैसा होगा? टी फॉर टेमेरिन, टी से टार्टरिक एसिड, इसको ऐसे करके याद कर लो। टेमेरिन में टार्टरिक एसिड। एंट स्टिंग में क्या? मिथेनोइक एसिड, जस्ट अभी हमने पढ़ा। बी स्टिंग में भी यही था। एंड निटल स्टिंग में क्या था? मिथेनोइक एसिड। टोमेटो में कैसा होता है? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऐसे करके याद कर लो। टी के बाद ओ आता है, ओ से ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, टी फॉर टेमरिन, टी फॉर टार्टरिक एसिड। एंड जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है लाइक ऑरेंज एंड लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड होता है। और स्टिंग जो भी हुए उनमें कौन सा हुआ? मिथेनोइक एसिड। मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ों में लैक्टिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। In the part 1 video, we learned about the formation of salts during various reaction. But हम थोड़ा salts के बारे में जान लेते हैं कि उनकी properties, preparations and उनके uses क्या हैं. But let's start with family of salts. Salts having common acidic or basic radicals are said to belong to same family. For example, sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, they all belong to chloride family. Similarly, calcium chloride and calcium sulfate belong to calcium family. Zinc chloride and zinc sulfate belong to zinc family. तो इस तरीके से salts having common acidic और basic radicals क्या हुए? are said to belong to सेम फैमिली। तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे क्लोराइड फैमिली में जिनके भी एनायन में क्लोराइड होगा वो क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे। कैल्शियम फैमिली में जिसमें भी कैटायन कैल्शियम होगा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, तो ये कैल्शियम फैमिली। सिमिलरली इन जिंक। Salts of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7, for example NaCl. On the other hand, salt of strong acid and weak base are acidic in nature with pH value less than 7, for example ammonium chloride. And salt of a strong base and a weak acid will form basic salt with pH more than 7, for example sodium acetate. This is CH3COONA is sodium acetate. अगर ये Na को हटा दें तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। बट H की जगह Na आ गया तो ये क्या हुआ? सोडियम एसीटेट। अब तक हम समझ गए हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के कॉम्बिनेशन से NaCl मिलता है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट है और इट इज़ अ सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड। सी वाटर में बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं और NaCl को उसमें से अलग कर लिया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इनका कलर कैसा है? ये लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्म में है और इनका कलर ब्राउन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेवरल इम्प्योरिटीज इन इट, और इसको रॉक सॉल्ट बोला जाता है। एंड बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स, ऐसी सीज के
ऐसी सीज में मिले जो कि पहले एग्जिस्ट करती थी, बट उनके ड्राई होने की वजह से वो रॉक सॉल्ट विजिबल हो गया. तो रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल्ड फ्रॉम देयर. Common salt thus obtained is very important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. अब हम इनके बारे में वन बाय वन करके देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. स्टार्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से क्या बनता है? NaOH इज प्रोड्यूस्ड एंड अलोंग विद NaOH क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कालाई प्रोसेस. बिकॉज इसमें क्लोरीन गैस बन रही है और NaOH बन रहा है, तो NaOH एल्कालाइन है और क्लोर फ्लोर क्लोरीन, तो इसीलिए इसको क्लोर एल्कालाई प्रोसेस बोला जाता है. क्योंकि क्लोरीन गैस कहाँ पे बन रही है? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड. एनोड पे बन रही है क्लोरीन और कैथोड पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस. एंड NaOH इज प्रोड्यूस्ड इज फॉर्म नियर द कैथोड, है ना? कैथोड के पास ही NaOH बन रहा है. सो ये जो तीनों प्रोडक्ट्स जो यहाँ से मिल रहे हैं ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं और इनका कहीं ना कहीं यूज़ है. हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना एंड उस डायग्राम फिगर को भी याद कर लेना. एनोड पे क्या मिल रही थी हमें? क्लोरीन गैस. एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और नियर कैथोड हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था. अब इनके यूजेस देखते हैं. हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल और मार्गराइन में भी यूज़ होता है ये. क्लोरीन कहाँ पे यूज़ होती है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ होती है, PVC में एंड CFCs में. PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड. एंड CFCs क्या हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो उसमें क्लोरीन गैस यूज़ होती है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग स्टील्स एंड मेकिंग मेडिसिन्स. NaOH is used in degreasing metals, soaps and is used in paper making industry. And chlorine gas and NaOH together ये क्या है? ब्लीच में हेल्प करेंगे. एंड ये क्या है? हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स में ये दोनों यूज होते हैं एक साथ. जस्ट अभी आपने देखा कि क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस से. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब ब्राइन. क्लोरीन गैस वहाँ से हो रही थी प्रोड्यूस. एंड जब इस क्लोरीन का एक्शन ड्राई स्लेक्ट लाइम पे किया जाता है तो क्या मिल रहा है हमें? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 और water is produced. You can see this is a balanced equation when action of chlorine gas on dry slaked lime will produce bleaching powder. This is extremely important reaction. आपको याद रखना है कि ये कैसे बन रहा है और इसके uses क्या क्या हैं. Uses अब हम देखते हैं. Bleaching cotton and linen in textile industry, bleaching wood pulp in paper factories, oxidizing agent in chemical industries and disinfecting drinking water. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा. इसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3. इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. ये कैसे मिलेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस एमोनिया. जब ये चारों चीज़ आपस में रिएक्ट करेंगी तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा मिलेगा. और बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज. ये इसको पकौड़ाज वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं. उससे क्रिस्पीनेस विल बी इंक्रीजिंग एंड कुकिंग भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी. एंड बेकिंग सोडा क्या है? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. एंड जब इसको हीट करते हैं
तो Na2CO3, H2O और CO2 इज इवॉल्व। ये CO2 जो इवॉल्व हो रही है ना, इसकी वजह से ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जीनेस आ जाती है खाने में। अभी जस्ट हम इसके यूजेस में इसको देखेंगे, बट ये रिएक्शन आप एक बार ध्यान से देख लो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। यूजेस देखते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर पूछा जा सकता है आपसे क्या होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है विद वाटर तो क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। CO2 इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे अभी जस्ट हमने देखा, इज प्रोड्यूस्ड विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज, मतलब वो थोड़ा उसका लेवल अबव ऊपर हो जाता है और उसकी वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेकिंग केक और इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में क्यों? बिकॉज बीइंग अल्कालाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक and provides relief, and it is used in soda acids and fire extinguishers में भी ये यूज़ होता है। तो यूजेस आपको ध्यान रखने हैं और ये बनता कैसे है और इसकी हीटिंग से क्या 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 बनेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारा कैसे बना था? हीटिंग ऑफ sodium bicarbonate. तो sodium carbonate can be obtained by heating baking soda and recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. बस इसमें recrystallization कर दिया, इसका मतलब water molecules ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया? washing soda. ईजी है ना ये काफ़ी। अब देखो यूजेस देखते हैं इसके। इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। बोरेक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, cleaning agent for domestic purpose and for removing permanent hardness of water. आप इस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है एंड इसको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है, और रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा डाला जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये वही सब्सटेंस है जो डॉक्टर यूज़ करता है फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स। It is a substance that doctor use as plaster for supporting fractured bone in the right position. राइट पोजीशन पे बोन्स को रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करता है डॉक्टर। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आप सोचोगे हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो गया? इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ रिटन फॉर 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसीलिए यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल आ गया। बट अदरवाइज यहाँ पे हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट विल शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब जिप्सम का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, मतलब इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस पानी मिक्स करेंगे तो ये अगेन जिप्सम हो जाएगा जो कि काफ़ी हार्ड होता है। ओके, तो ये इक्वेशन आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दिया 1.5 मॉलिक्यूल तो जिप्सम मिल गया। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलेगा? हीट करने पे 373 केल्विन पे हीट करने पे वाटर लूज कर देगा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसा सब्सटेंस है? इट इज़ ए वाइट इन कलर सब्सटेंस जो कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ओके, एंड इसके यूज़ देखो, डॉक्टर यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP से भी लिखते हैं इसको, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। अब हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट।
जैसे 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ जिप्सम में कितने कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे CSO4.2H2O में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली ये वॉशिंग क्या था, ये वॉशिंग सोडा में कितने हुए 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच्ड हैं, इनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all for today. Please hit the like button if you like this video, and if there is any doubt related to this chapter or any suggestion, you can write in the comment section. And thanks for watching this video.